Thank you, Adiba, for that introduction. Assalamu alaikum, everyone, and I welcome you all to the fifth episode of Artificial Intelligence Unfolded. And in this session, we will be particularly talking about data science and everything regarding to data. Like Adiba mentioned, I'm also a final year student of data science, and I'm also a Global UGrad alumna. For those of you who don't know what Global UGrad is, it's an exchange program funded by US Department of State where you complete one semester in an American university. I completed my seventh semester last year and I was placed in New York. I completed my semester from State University of New York, Plattsburgh. And over there, I had the privilege to study numerous computer science subjects and other subjects like US national politics and college writing. But today we're gathered here for data science. So let's start without any further ado. I'll share my screen and hopefully you all can see it. So yeah, that was my introduction. And the aim of the session is कि if not a lot, by the end of the session आपको इतनी समझ में आ जाए कि what is data science, and if you want to start your academic journey in data science तो आपको थोड़ी बहुत know how हो कि आपने कौन कौन से steps के through गुजरना है and किन tools and techniques को use करते हुए you can start your journey in data science. So before I start, this is going to be the agenda. I'll discuss कि data science होती क्या है, data science का role क्या है, what's the basic life cycle of data science, what are different career paths that you can choose in data science, and what are the basic tools and techniques that you should be, proficient at to kickstart your profession in data science. So let's get started. Before I start and मैं अपना input दूँ, I would like कि I want this session to be as interactive as it could be. So अगर आप लोगों ने कोई भी अपना input देना है, please feel free to add and just contribute in the discussion. And don't be afraid कि गलत बोल दूंगा या ठीक बोल दूंगी. That doesn't matter. Your input matters, and even if it's wrong, that's not the problem. हम उसको correct कर सकते हैं. So I would like to ask कि यहाँ पर किसी को कोई थोड़ी नो हाउ है ऑफ डेटा साइंस या एनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग डेटा साइंस. प्लीज गो अहेड. Okay, I think everyone is very shy right now, so maybe at the end of the discussion, data science, let's dig into it कि data science है क्या. आजकल जिससे देखो तो वो डेटा साइंस बूम पे है. एवरीवन इज सेइंग डेटा डेटा. जिसको बताओ कि मैं डेटा साइंस पढ़ रही हूँ, दे से ओ इट्स अ वेरी इन डिमांड फील्ड. सो इट बेसिकली लेट्स डिग अ लिटिल डीपर कि है क्या चीज़. सो डेटा साइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी. आई बिलीव 30 years बैक हमें डेटा साइंस की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आज के दौर में जो हमारे पास डेटा प्रोड्यूस हो रहा है उसका आई फील लाइक नॉट इवन 5% ऑफ इट वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड 30 years बैक. एंड एट दैट टाइम प्रॉब्ली डेटा साइंस की ऐसा कोई ज़रूरत है ही नहीं. बट नाउ डेटा साइंस हैज़ बिकम अ नेसेसिटी. वाई? बिकॉज आजकल के दौर में हम लोगों के पास डेटा जो है वो मिलियंस एंड बिलियंस में प्रोड्यूस हो रहा है. सोशल मीडिया को देख लें आप. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म्स ही इतना डेटा जनरेट करें. इट इज़ रिपोर्टेड कि फेसबुक दिन में 4 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट करता है, विच इज़ अ लॉट. तो आप ये डेटा देखें, देन आप देखें आईओटी का डेटा हमारे पास है. आईओटी इज बेसिकली डेटा इज बेसिकली कि हमारे पास जितने भी स्मार्ट सिस्टम्स हैं उनमें जो हमारे पास सेंसर्स जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ऑल आईओटी डेटा. देन हमारे पास ई कॉमर्स का डेटा है, हमारे पास हेल्थ केयर का डेटा है, हमारे पास फाइनेंशियल डेटा है. सो विद द डिजिटाइजेशन हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा एबंडेंस में पैदा हो रहा है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली हम इस डेटा को वेस्ट नहीं कर सकते. वी कैंट लेट दैट डेटा गो टू वेस्ट, राइट. वाई? बिकॉज ये डेटा बहुत वैल्यूएबल नॉलेज होल्ड करता है. इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू. एंड हम इस डेटा के थ्रू बहुत वंडरफुल एंड बहुत अमेजिंग किस्म के रिजल्ट जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं. किसी का माइक अनम्यूट हुआ है. थैंक यू. सो हमने इस डेटा को ज़ाया नहीं होने देना. हमने इसको एनालाइज करना बिकॉज इसके थ्रू हम बहुत सी इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं. हम इससे बहुत सारे
फ्रूटफुल चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। ऑलराइट, अब ये डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसको हम टैबुलर फॉर्म में भी क्या कहते हैं नोट कर सकते हैं, लाइक एक्सेल फाइल्स में या डेटा बेसिस में। दैट इज ऑल स्ट्रक्चर्ड डेटा। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी इन अबंडेंस है। फॉर एग्जाम्पल वीडियोज, इमेजेस, ऑडियो, ये सब हमारे पास वो डेटा है जो कि हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ठीक है, सो अगर मैं डेटा साइंस को एक सेंटेंस में कंक्लूड कर सकूं, इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, स्टेटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व है, वी हैव बिजनेस इंटेलिजेंस, वी हैव कंप्यूटर साइंस, एंड इट ऑल्सो हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली जो पूरी हम सीरीज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डेटा साइंस. So basically, data science is a combination of fields that uses tools, different tools, techniques, processes, algorithms to analyze data and to derive some valuable knowledge from it. इस valuable knowledge को हम आगे use कर सकते हैं to take informed decisions. Now मैं इस informed decisions की जो term को है मैं थोड़ा सा और explain करना चाहूँगी. हमारे पास आजकल डेटा साइंस अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बिजनेसेस में यूज़ हो रहा है. बिजनेसेस में हमारे पास ये डेटा साइंस किस तरीके से यूज़ हो रहा है? बिजनेसेस असल में हमारे पास जो है वो डेटा साइंस को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो अपने डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, एनालाइज करके कोई डिसीजन ले रहे हैं. डिसीजन लेने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो आप अपनी इंट्यूशन पे ले लो या फिर आप डेटा को एनालाइज करके ले लो. जो आप अपनी इंट्यूशन पे लेते हो या अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हुए डिसीजन लेते हो, वो एक बार ठीक हो जाएगा, दो बार ठीक हो जाएगा, बट एट द थर्ड टाइम इट माइट फेल. वाई? बिकॉज इट्स नॉट किसी कंक्रीट चीज़ के ऊपर आप वो नहीं ले रहे हो डिसीजन. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लोगे तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे दैट आर गोइंग टू बी 100% मोर एफिशिएंट देन द वन दैट यू टुक बेस्ड ऑन योर गट फीलिंग. ठीक है, बिकॉज डेटा क्या है? इट्स ऑल फैक्ट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स नेवर लाई. ठीक है, सो आजकल जो है हमारे पास बिजनेसेस में सबसे ज़्यादा ये रोल जो है वो डेटा साइंस का है. किस तरीके से यूज़ करें? दे आर यूजिंग इट इन अ वे कि वो अपने डिसीजंस को डेटा की बेसिस पर लें ताकि उनके ऑपरेशंस जो हैं डे टू डे के ऑपरेशंस वो स्मूथली परफॉर्म हो सकें, उनको एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मिल सके. इस तरीके से उनकी यू कैन से बट पैसे कम लगते हैं उनके. ठीक है, और उनको एक रेवेन्यू में इंक्रीज मिलता है. ठीक है, ये बातें अभी थोड़ी सी सेंस नहीं बनाएंगी बट एज आई विल मूव अलोंग द प्रेजेंटेशन तो आपको समझ आती रहेगी कि किस तरीके से ऑपरेशन इंप्रूव करता है, किस तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज करता है एंड किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करता है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास डेटा साइंस जो है वो डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से हेल्प कर रही है. नाउ लाइक आई सेड के बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास डेटा साइंस, बट किस तरीके से एक्सप्लेन करें दैट आई एक्सप्लेन इन डिटेल राइट नाउ. सो फर्स्ट हमारे पास आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को अगर मैं इजी वर्ड्स में डिफाइन करूं ताकि आप सबको समझ में आ जाए, वो ये है कि बेसिकली आप अपने हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हो ताकि आप फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन दे सको. ठीक है, दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. इसकी एक एग्जाम्पल वुड बी कि अगर हमारे पास एक रिटेलर ले लेते हैं एंड उस वो एनालाइज करना चाह रहा है, वो डेटा साइंस को यूज़ करेगा टू सी कि अगर एक हॉलीडे सीजन आ रहा है, फॉर एग्जांपल ईद आ रही है या क्रिसमस आ रही है, और उसने एनालाइज करना है कि भाई इन लास्ट सीजन्स में, मतलब जो पिछले सालों में ये सीजन जब जब आया है तो मेरा XYZ प्रोडक्ट काफ़ी सेल हुआ है. ठीक है, सो अब वो क्या करेगा कि अब वो डेटा साइंस को यूज़ करते हुए अपने हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करेगा. वो देखेगा कि किन किन ईयर्स में मेरे ये प्रोडक्ट्स की क्या क्या सेल्स हुई हैं. ठीक है, एंड देन वो उन सेल्स को डिटर्मिन करते हुए अपनी इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को उसको बैलेंस आउट करेगा. ठीक है, वो देखेगा कि अगर XYZ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है तो वो उसको ज़्यादा ला के रख देगा अपनी इन्वेंट्री के अंदर. एंड देन व्हाट ही विल डू इज कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी इस तरीके से डेवलप करेगा कि उनकी सेल ज़्यादा हो, उस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो. सो basically what is he doing? He's performing predictive analysis based on the historical data. वो analysis कर रहा है कि okay future में अभी जब ये वाला season आएगा इसमें मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा तो मैं ये measures ले लेता हूँ पहले से. So this is an example of predictive analytics. इसकी एक और एग्जाम्पल जो इजी होगी और आप सबको समझ में आएगी वो है नेटफ्लिक्स की.
नेटफ्लिक्स में जब आप कोई मूवी देखते हो या कोई सीजन देखते हो तो नेटफ्लिक्स आपको एक और सीजन या मूवी सजेस्ट करता है, ठीक है, आपको एक और रिकमेंड करता है। वो क्या, इसके पीछे क्या सारी थ्योरी यूज हो रही होती है, वो यही प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की हो रही होती है कि आपके हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे वो आपको नई चीज़ें जो है, नए सीजन्स और नए मूवीज जो है वो रिकमेंड कर होता है कि आप इसको पसंद करेंगे। इसका मेन रीजन यही होता है कि आपका जो यूजर है वो आपके साथ क्या कहते हैं आपके प्लेटफॉर्म को यूज करता रहे, जिससे आपके फिर इन टर्म्स आपकी आगे जो होती है वो रेवेन्यू ही आपका जनरेट होता है। कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, हमारे पास आता है कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन में बेसिकली ये होता है कि डेटा साइंस जो है वो कस्टमर डेटा साइंस को यूज करते हुए आप कस्टमर डेटा को एनालाइज करते हो। आप देखते हो कि एक बिजनेस है तो उसके जो कस्टमर्स हैं उनका बिहेवियर क्या, शॉपिंग बिहेवियर क्या है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, उनके लाइक या डिसलाइक क्या है, और उन्होंने इससे पहले हिस्ट्री में लाइक हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या चीज़ें बाय की हुई हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन दीज ट्रेड्स आप जो होता है ना आप जो भी डेटा साइंस की जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो वो बेसिकली आपके कस्टमर्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, मतलब कि ग्रुप्स या क्लस्टर्स में डिवाइड कर देती है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्लस्टर्स वो फिर आपको टारगेटेड मार्केटिंग करती है, ठीक है। टारगेटेड मार्केटिंग आप सबके साथ होती होगी, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आप देखते होंगे कि आपको जो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं आपको उनकी एड ज़्यादा नजर आ रहे होते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं, फेसबुक यूज़ करें, इंस्टाग्राम यूज़ करें, तो वो आपको जो चीज़ का इंटरेस्ट हो रहा होता है वही चीज़ आपको सामने आती है। तो वो दैट्स नॉट रॉकेट साइंस और दैट्स नॉट क्या आप कह लें कोई मैजिक नहीं हो रहा होता है, दैट्स कस्टमर सेगमेंटेशन। इसकी एग्जाम्पल के अमेजोन पे अगर अमेजोन जो होता है वो कस्टमर सेगमेंट्स बना देता है, कस्टमर ग्रुप्स बना देता है बेसिकली, ठीक है। एंड देन वो देखता है कि एक सेगमेंट है, एक ग्रुप है जो कि फ्रीक्वेंटली बेबी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदते हैं, लाइक डायपर्स हो गए या फॉर्मूला मिल्क हो गया या फीडर्स हो गए, ठीक है। वो ये फ्रीक्वेंटली बाय करें, तो वो क्या करता है कि वो जब कोई नया बेबी प्रोडक्ट आता है ना तो वो उसी सेगमेंट को टारगेट करके उनके सामने वो मार्केटिंग करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट वुड बी हाई। उस प्रोडक्ट को खरीदने के लोग जो है ना हाई प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि वो हिस्टोरिकल डेटा को देख रहा होता है कि ये देखो इन्होंने तो पहले भी हमारे से ये चीज़ें बाय की, मैं अगर मैं इसको ये टारगेट करूंगा ना तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ये भी खरीद लेगा। सो दैट इज कस्टमर सेगमेंटेशन। एंड इसका सबसे बड़ा अगर आप देखें तो फायदा ये होता है कि इससे आपकी कॉस्ट काफ़ी बच रही होती है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जितने भी ब्रांड्स होते थे वो जो टिपिकल हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो करती थी, लाइक बिलबोर्ड पे एडवर्टीजमेंट कर दी या न्यूज़पेपर में ऐड कर दिया। और ये हम सबको पता है कि ये वाली एडवर्टाइजिंग जो होती है वो बहुत महंगी पड़ती है। इससे बेहतर ये है कि आप टारगेटेड मार्केटिंग करें जिसमें आपको कम से कम ये प्रोबेबिलिटी तो क्लियर होना कि एटलीस्ट मैं जिसको ये टारगेट कर रहा हूँ ये ऐड या मैं जो कैंपेन है जिस पर टारगेट करूँ, ये प्रोडक्ट इस पर मैं टारगेट करूँ, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दैट पर्सन विल बाय दैट प्रोडक्ट। सो इस तरीके से आपकी रेवेन्यू में डायरेक्टली इंक्रीज आ जाता है एंड आपकी एडवर्टीजमेंट जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली डिक्रीज हो जाती है। सो इस तरीके से बिजनेसेस अपने यूज करें डेटा साइंस को ताकि वो अपने जो स्विफ्ट जो ऑपरेशन है उनको स्विफ्टली परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट वी कम टूवर्ड्स फ्रॉड डिटेक्शन। अच्छा मुझे बताएं सब जाग रहे हैं सेशन में या नहीं, मुझे कोई एक बंदा नोटिफाई कर दे कि अभी तक कुछ जी समझ आ रहा है। यस मैम। जी समझ आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं फ्रॉड डिटेक्शन पे। ये फ्रॉड डिटेक्शन हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? इट्स बेसिकली आप अपने डेटा साइंस को, डेटा एनालिसिस को यूज करते हुए यू कैन सी कि कोई भी फाइनेंशियल अगर आपके जो डेटा है उसमें कहीं भी इनकन्सिस्टेंसी आ रही है तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ या आपके बिजनेस के साथ किसी बाहर वाले बंदे ने या इवन विद इन द कंपनी किसी ने फ्रॉड तो नहीं किया। एंड इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं भी कि हमारे पास पेपैल का आप सबने सुना होगा, ठीक है। पेपैल पाकिस्तान में तो काम नहीं करता बट बाहर लोग बहुत इसको वाइडली यूज़ करते हैं। सो पेपैल जो है बेसिकली हमारे पास मशीन लर्निंग के मॉडल्स को यूज़ करती है टू डिटेक्ट फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। सो इसमें डेटा साइंस की एक टेक्निक तो एनालिसिस होगी, एनालिसिस के थ्रू आप क्या कहते हैं फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं। दूसरी आपकी टेक्निक है मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू। एंड अभी आई बिलीव
सेकेंड एपिसोड एंड फोर्थ एपिसोड में मशीन लर्निंग के बारे में काफ़ी इन डेप्थ जाके बताया भी गया है कि मशीन लर्निंग होती क्या है। सो आप अपने फ्रॉड डिटेक्शन में मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ होते हैं जो रियल टाइम में डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। Then we come towards supply chain optimization. सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन ये है कि डेटा साइंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सप्लाई चेन, जिसमें सप्लाई चेन में आपकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, लॉजिस्टिक्स आ जाती हैं, इन्वेंट्री आ जाती है। इन सारे ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हम डेटा साइंस यूज़ करते हैं। किस तरीके से करते हैं? लाइक मैंने फर्स्ट पॉइंट में कवर किया प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। सो इसी तरीके से आप सप्लाई चेन में भी ये यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से कि आप अपनी इन्वेंट्री को सही स्टॉक रखो, ठीक है। अगर आपने देख लिया कि अगर कोई सीजन आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो हम रूह अफ़ज़ा की ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। अभी ईद का जब हमारे पास रमज़ान स्टार्ट होगा तो रमज़ान में उसकी जो सेल्स हैं वो रैपिड हाई हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूज़ कर रहे होंगे तो आप पहले हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हुए बता दोगे कि ओके ये एक फेज़ आ रहा है जिसमें हमारे पास सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इट्स बेटर कि मैं अपना जो अपनी इन्वेंट्री है ना उसको मैं स्टॉक रखूँ ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास एक और एप्लीकेशन जो है वो रूट ऑप्टिमाइजेशन की भी आती है। रूट ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास ये आता है कि आपकी जितनी भी जो डिलीवरीज हैं वो टाइमली होनी चाहिए, वो एफिशिएंट हो, और आपकी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो कौन से रूट्स लें जिसकी वजह से आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम पड़े, ठीक है। इसी में आप डिटर्मिन कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक क्या कहते हैं ई कॉमर्स का बिजनेस है ना, आप लोग डिलीवरी वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो उस रूट ऑप्टिमाइजेशन में और उसमें ये भी एक सजेस्ट कर सकते हैं, बल्कि उसमें ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि वो देख लेंगे कौन कौन से उन्होंने पार्सल्स जो हैं वो क्या कहते हैं कौन से रूट पे डिलीवर करने हैं। ये ना हो कि आपकी ट्रांसपोर्ट एक व्हीकल निकले एरिया ए में देने के लिए और फिर एक निकले एरिया एक्स में देने के लिए। इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो इट्स बेटर टू ऑप्टिमाइज योर रिसोर्सेज। एंड सिमिलरली आप इसको आगे क्या कहते हैं रियल टाइम ट्रैकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। रियल टाइम ट्रैकिंग में इस तरीके से कि अगर आपका बिजनेस है, सो यू कैन सी कि सप्लाई एंड डिमांड में जैसी अगर कोई क्विक चेंज आता है तो आप उसको जल्दी से रिकवर कर लो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उसकी एग्जांपल दी रूह अफ़ज़ा की कि एक ईद में जो रमज़ान एंड ईद पर उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, तो आपको टाइमली जो है अपनी सप्लाई भी फिर ज़्यादा करनी होगी। सो इसके लिए आप रियल टाइम ट्रैकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। So these were all the examples of how data science is being used and can be used in businesses. इसके अलावा आजकल के दौर में हमारे सामने जो चीज़ें हो रही हैं, मैं ये यूटोपियन वर्ल्ड की बात नहीं कर रही कि हो सकती हैं या नहीं, ये हो रही है हमारे पास। उसकी एग्जाम्पल हमारे पास आता है हेल्थ केयर में हमारे पास बेसिकली आप देखें कि आप डेटा साइंस को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप पेशेंट्स के लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बनाएं, ठीक है। ये किस तरीके से हो सकती है कि आप एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल, उसकी जीन्स को स्टडी करें, जेनेटिक मेकअप को स्टडी करें, ठीक है, उनके पास्ट हिस्टोरिकल मेडिकल डेटा को पढ़ें, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उनके लिए पर्सनलाइज मेडिसिन सजेस्ट करें कि ओके दिस वुड बी बेटर फॉर पर्सनलाइज्ड क्या कहते हैं मेडिसिन भी हैं, इसके अलावा न्यूट्रिशनल प्लान्स भी, कि आप ये फॉलो करें, ये चीज़ें प्रिस्क्राइब करें और खाएं। तो इट्स अ न्यू वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट नाउ। इसके अलावा सिमिलरली आप डिजीज़ प्रिवेंशन भी कर सकते हो एक पेशेंट के अंदर कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल लाइक आपके एक बंदा है एंड देन उनके पेरेंट्स जो हैं दोनों डायबिटिक है, ठीक है। सो टू प्रिडिक्ट अर्ली प्रिडिक्ट करना है अगर हमने कि आया उस बंदे को डायबिटीज़ होंगे या नहीं होंगे, तो आप डेटा साइंस को यूज़ कर सकते हो विद द सेम एप्लीकेशंस कि आप उनके जेनेटिक मेकअप को स्टडी करो, उनके क्या कहते हैं उनके मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी करो, एंड देन अर्ली ऑन प्रिवेंट कर लो, अर्ली ऑन डिटेक्ट कर लो कि येस इनको डायबिटीज़ होगी, ठीक है। एंड दिस इज पॉसिबल एंड इट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड कि इनको भी डायबिटीज होगी, तो आप पहले से ही प्रिकॉशंस ले लो कि
जो जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, ताकि आप उसको या तो उस डिजीज को जितना डिले कर सकते हो वो करो, या टोटली 100% अगर प्रिवेंट कर सकते हो, अगर वो प्रिवेंटेबल है भी, तो आप वो करो। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में अगेन लाइक आई सेड एंड आई हैव मेंशन कि आप रूट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि आपकी जो जो व्हीकल्स हैं आपको उनको कहाँ से गुजारना है, कौन से रूट्स फॉलो करवाने हैं, जिससे आपकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम से कम लग सके। सो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन में आप उसको यूज़ करते हो। वही अगेन डिलीवरी, वो जो बात आ गई कि आप पैकेजेस डिलीवर करते हो, तो ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन में इस तरीके से डेटा साइंस यूज़ हो रही है। देन वी कम टूवर्ड्स पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी में हम यही कहते हैं कि नॉर्मली जो एक परसेप्शन आता है कि डेटा साइंस को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लो कि एक एरिया में क्राइम का क्या रेट हो सकता है अभी, और इन फ्यूचर ज़्यादा हो सकता है या लो हो सकता है, ठीक है। एंड दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। ये यूएस में हमारे पास जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट है, वो बेसिकली प्रिडिक्टिव पुलिसिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे मॉडल्स क्रिएट किए हुए हैं जिसमें वो प्रिडिक्ट पहले से करके बता देते हैं, आइडेंटिफाई करके बता देते हैं कि कौन से एरियाज है जिसमें हाई रिस्क ऑफ क्राइम है। सो अगर हमें ये एरियाज ऑब्वियसली पता चल रहे हैं कि कौन से जो पब्लिक ये सिक्योरिटी सेक्टर्स हैं, उनको पहले से ही पता चल रहा है कि कौन से एरियाज हैं जिसमें हेट क्राइम का या डिफरेंट अदर क्राइम्स का जो है वो रिस्क हाई होगा, तो वो ऑलरेडी पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ठीक है। एंड इन दैट वे द पब्लिक कुड फील मोर सिक्योर, ठीक है। सो coming towards the last point of this slide is environmental sustainability. Again वही बात कि आपके पास डेटा साइंस के डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज करते हुए आप जो है एनवायरनमेंट की जो जैसे एनवायरनमेंट में हमारे पास एयर क्वालिटी आ जाती है, वाटर क्वालिटी आ जाती है, तो उसको प्रिडिक्ट करने का, उनकी क्वालिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए वी कैन यूज डेटा साइंस। एंड इसके अलावा आप ट्रैश, जिस तरह आजकल काफ़ी आ रहे हैं ऑप्टिमाइज सॉरी काफ़ी मॉडल्स आ रहे हैं दैट कैन प्रिडिक्ट कि एक एरिया में फॉर एग्जांपल ट्रैश का है, वेस्ट कितना बढ़ सकता है, ठीक है। एंड देन अगर आप डिफरेंट एरियाज में जिस तरह से वेस्ट का पता चल रहा होता है कि इधर ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, इधर माइक बंद हो गया आपका। Hello, Ghafair. You're not audible. am I audible now? Yes, it's working now. ओके सॉरी। सो मैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का बता रही थी कि डेटा साइंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप एयर क्वालिटी को डिटर्मिन करने के लिए एंड वाटर क्वालिटी को, एंड सिमिलरली लैंड पे जितने भी आपका ये वेस्ट होता है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए आप कर सकते हो। वन ऑफ द एप्लीकेशन दैट आई एक्चुअली स्टडीड वाज के जिस तरीके से ये प्रिडिक्टिव मॉडल्स यूज़ करते हुए आप देख सकते हो कि डिफरेंट एरियाज में कहाँ पे वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप अपनी क्या कहते हैं जितनी भी क्लीनिंग कार्स होती हैं उनको क्या कहते हैं एलोकेशन उनकी कर सकते हैं। सो ये एक काफ़ी वो ब्रॉड टॉपिक है, तो उसको मैं इतना एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी, बट इन तरीक़ों से हमारे पास जो डेटा साइंस है वो यूज़ हो रही है इन डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स के डेटा साइंस अगर हमने इम्प्लीमेंट करनी है, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इन डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो हम इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, या इवन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर जब आप ज्वाइन करेंगे डेटा साइंस की फील्ड को, या आप चाहेंगे कि आप इसमें अपनी जर्नी स्टार्ट करें, तो आपको एक बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि मुझे किन स्टेप से गुजारना है, मुझे अपने डेटा को किन स्टेप से गुजारना है, ताकि मैं एक ऑप्टिमाइज किस्म के सोल्यूशन के साथ कम अप कर सकूं, ठीक है। मैं किस तरीके से कोई एक्यूरेट रिजल्ट्स बता सकूं, किस तरीके से मैं valuable information निकाल सकूं। So these are the data science life cycle. This is the data science life cycle, and ये steps
सारे स्टेप्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कोई इक्वली इम्पोर्टेंट एंड यू कैन नॉट मिस आउट अ सिंगल स्टेप. All of these hold a lot of importance. So first off, we have problem identification. किसी भी इशू को सॉल्व करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप वो प्रॉब्लम क्या है जिसको एड्रेस करना चाहते हैं. आपने प्रॉब्लम को देखना. आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है. आपकी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपने अपनी बिजनेस की सेल्स को बढ़ाना है. आपकी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि अच्छा मेरी सेल्स ज़्यादा हैं, लोग कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, बट वो क्या करेंगे, वो मेरे प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर रहे हैं. तो ये भी आपकी एक बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है. आपकी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके जो फॉर एग्जांपल योर ई कॉमर्स बिजनेस हैज़ अ वेबसाइट, ठीक है, और वो वेबसाइट के जो कस्टमर्स हैं वो वेबसाइट के चेकआउट पेज तक आते हैं बट वो कोई कन्वर्जन नहीं करते, लाइक वो कोई प्रोडक्ट खरीदते नहीं है. तो आपकी ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि यू हैव टू डिग इन एंड सी कि क्या प्रॉब्लम है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं दे आर नॉट बाइंग समथिंग. सो यू कैन हैव अ वास्ट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. आपने नैरो डाउन करना है, चेक करना है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और मुझे किस तरीके से उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है. सो ये काफ़ी एक सिंपल से स्टेप लग रहे हैं बट काफ़ी सारे लोग इसी चीज़ में प्रॉब्लम में अटक जाते हैं बिकॉज दे डोंट रियली नो कि वो किस प्रॉब्लम को बेसिकली एड्रेस कर रहे हैं. समटाइम्स देयर प्रॉब्लम इज़ टू वास्ट, लाइक उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि उनको नैरो डाउन कर करके किस चीज़ का हल निकालना है. सो एज सिंपल एज इट साउंड्स, दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ साइकिल. Then coming towards the second step, which is data extraction. आपका आप since it's a data science life cycle, data के बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है. And we have to see कि since हम इस डेटा वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम जो जिन सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो रिलायबल होनी चाहिए. वो हमें हाई क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करे, वो रिलायबल डेटा प्रोवाइड करे और रेलिवेंट भी होना चाहिए वो डेटा, ठीक है. सो बैक इन द डेज जब भी कोई रिसर्च कर रहा होता था या कोई दे वांटेड टू गेट एन इनसाइट अबाउट समथिंग, तो वो सर्वेस किया करते थे या क्वेश्चनियर्स किया करते थे. दैट इज अ फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है वो. बट समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि जो सर्वे वो बनाते हैं ना, वो इतना 100% एक्यूरेट नहीं होता, वो इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वो कभी कभी बाइस डेटा को सिलेक्ट करता है. तो आप जब अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप नॉन बाइस डेटा उसको सिलेक्ट करें, उसको गैदर करें, ठीक है. एंड डेटा एक्सट्रैक्शन ये ऑनलाइन भी हो सकती है एंड ऑफलाइन भी हो सकती है. ऑनलाइन में आप डिफरेंट वेब से, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से आप डेटा को गेट कर सकते हो. वेबसाइट से भी आप इसको डेटा को अपने एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट लाइब्रेरीज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जहाँ से आप डेटा वेबसाइट से डेटा को गैदर कर सकते हो. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आगे एक इसी डेटा AI अनफोल्डेड में एक एपिसोड होगी जिसमें वेब स्क्रैपिंग करवाएंगे. सो वेब स्क्रैपिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर आता है. सो वंस यू हैव एक्सट्रैक्टेड द डेटा, आपने डेटा जितना था वो कलेक्ट कर लिया, ठीक है. और डेटा कलेक्शन आप कभी भी एक सोर्स से नहीं करते, यू गेट इट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है. एंड इट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम एज वेल कि आपकी प्रॉब्लम जो भी है तो उसके लिए डेटा कहाँ से आता है. लेकिन यूजुअली ये होता है कि आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा गेट कर रहे होते हो. तो जब डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब आपने उस डेटा को प्रोसेस करना है, उसको क्लीन करना है, उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है. जब भी आप डेटा गैदर करते हो ना, तो वो कभी भी क्लीन फॉर्म में नहीं होता, मतलब कि वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट फॉर्म में नहीं होता. कभी उसमें मिसिंग वैल्यूज होंगी, कभी उसमें आउटलायर्स होंगे, मतलब कि बहुत ही एबनॉर्मल किस्म की वैल्यूज भी होंगी उसके अंदर. कभी उसके अंदर क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज डेटा नहीं होगा. तो आपने उस डेटा को एक फॉर्म में लेकर आना होता है. आप उस डेटा को क्लीन करते हो, उसको प्रोसेस करते हो ताकि वो नेक्स्ट फॉर्म के लिए जा सके. एंड डेटा प्रिपरेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका डेटा प्रिपरेशन का जो और प्रोसेसिंग का जो स्टेप है, अगर आप उसमें गलत डेटा को जो कहते हैं आगे बढ़ा देते हो, तो आपका पूरा एनालिसिस जो होगा वो गलत डेटा के ऊपर होगा, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने डेटा के अंदर से आउटलायर्स नहीं हटाते हो एंड उसी पे एनालिसिस करते हो, तो जब आपके पास एनालिसिस के रिजल्ट्स आएंगे तो वो आउटलायर डेटा वाले डेटा भी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, जिसकी वजह से वो आपको बाइस्ड रिजल्ट्स देगा. एंड रिमेंबर, यू नेवर वांट बाइस्ड रिजल्ट्स. आपको
इन द बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट चाहिए होते हैं. सो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है. सो दैट्स वाई डेटा प्री प्रोसेसिंग और यू कैन से डेटा क्लीनिंग, इसके डिफरेंट नाम है. डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं, डेटा क्लिनजिंग भी कहते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं. तो ये इसको इस स्टेप में ये चीज़ों इन चीज़ों का ख्याल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now we come towards the main and the most important stage of the life cycle, that is data analysis. अगर अब आपने डेटा ले लिया, ठीक है, तो या तो आप उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली आप एनालाइज करेंगे, या फिर आप अपनी उसमें मॉडलिंग करेंगे. जब मैं मॉडलिंग की बात करती हूँ, सो आई एम रेफरिंग टू मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है. तो आप बेसिकली एक ऐसा मॉडल डेवलप करेंगे which will give predictive analytics, and वो फिर आपको आगे informed decisions देगा या आपको valuable information देगा. If you're not doing modeling, then आप खुद जो है data analyze करेंगे, ठीक है. अब डेटा एनालिसिस का ये स्टेप जो है आपने बेसिकली देखना है. इसको आप डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं. अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग पे आप अपने मॉडल को ट्रेन करते होते हैं. आप डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ करते हैं, लाइक डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, और इस तरीके से आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है. किस तरीके से ट्रेन करते हैं? वही जो डेटा आपने कलेक्ट किया होता है उसी डेटा से आप उसको ट्रेन करते होते हैं. आप डिफरेंट एनालिसिस करते होते हैं. और इस स्टेप के बाद आप अपनी उस मॉडल इवेल्युएशन करते हैं, विच इज़ द फिफ्थ स्टेप. आपने एनालिसिस कर लिया, आपने मॉडल को ट्रेन कर लिया. अब आपने देखना है कि ये जो मैंने एनालिसिस किया है ये एक्यूरेट भी है, ये प्रिसाइज भी है या नहीं, काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा. तो एनालिसिस को आपने देखना है कि ये एक्यूरेट रिजल्ट्स दे आपको, कोई नॉन बाइस्ड रिजल्ट्स ना दे आपको, ठीक है. एक बाइस्ड इज बेसिकली जब कोई भी जो डेटा होता है वो एक चीज़ को फेवर कर रहा होता है, लाइक दो चीज़ें ना, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है. जब डेटा आपका एक्स को ज़्यादा फेवर कर रहा हो ना, आप देख रहे हो नॉर्मली ज़्यादा फेवर कर रहे हो, दैट्स बाइस्ड डेटा. सो आपने अपने एनालिसिस को देखना है कि मैंने बाइस तो नहीं किया. अगर आपने मॉडल प्रिपेयर किया, मशीन लर्निंग का मॉडल प्रिपेयर किया, तो आपने देखना है कि वो मुझे एक्यूरेसी दे रहा है या नहीं दे रहा, वो मुझे प्रिसिजन दे रहा है या नहीं. जो मैंने उसकी ट्रेनिंग की है उसको टेस्ट भी आपने करना है, उसको टेस्ट करना है, उसको वैलिडेट करना है टू सी कि आपका जो मॉडल क्रिएट हुआ है वो क्या कहते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं प्रोवाइड कर रहा. अगर नहीं कर रहा, सो ऑब्वियसली यू वुड नीड टू गो बैक एंड सी कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स की हैं. अगर उसकी एक्यूरेसी 60% आ रही, 50% आ रही है, तो that's no good model, right? You need something very proficient, very precise, ठीक है. So ये मॉडल इवेल्युएशन होगी. एंड लास्टली आप जाते हैं डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस. डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस का मतलब ये है कि अगर आपने डेटा एनालिसिस किया ना, आपने कोई इंसाइट निकाल ली, अब आपने जो सोल्यूशन प्रोवाइड करना है उसको इन एक्शन में लेकर आना है, ठीक है. आपने जो निकाल लिया कि अच्छा मेरे पास ये वजह है, एनालिसिस मैंने कर लिया, ये वजह है जिसकी वजह से आपकी सेल्स इतनी कम है. अब आपने एक सोल्यूशन प्रोवाइड करके उस सोल्यूशन को लेकर भी आना है, उसको एक्शनेबल आप कहते हैं. इसके लिए वर्ड बेसिकली यूज होता है कि एक्शनेबल सोल्यूशन. आपने उस सोल्यूशन को एक्शन में लेकर आना है, ठीक है, अपनी बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है. सिमिलरली अगर आपने मॉडल प्रपोज किया है, ठीक है, तो आपने उसको मेंटेन करना है, उसको पहले उसको इन एक्शन लेकर आना है, उसको मेंटेन करना है, देखना है कि इन फ्यूचर उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकेंगे, उसको अपडेट कर सकेंगे, उसको मेंटेन कर सकेंगे, ठीक है. सो बेसिकली डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस का यही मतलब है कि जो जो आपने काम किया उसको इन एक्शन लेकर आना, इन सिंपल वर्ड्स. सो ये हमारा पूरा डेटा साइंस का लाइफ साइकिल था, जिसमें हमारे पास 6 स्टेप्स है, ठीक है. मेनली यही होता है कि 6 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है. एंड where each step is very important because it holds a lot of value to the whole life cycle, ठीक है. because हर स्टेप में हर चीज़ को बहुत विथ माइन्यूट वो माइन्यूट किस्म की व्हाट्स द वर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर, उसको हर चीज़ को बहुत केयर से हैंडल करना होता है, ताकि आपका आगे जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है. अभी तक सब जाके मैं कुछ सोच नहीं रहा. yes ma'am. ओके, थैंक यू. अब हम चलते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स की तरफ. बेसिकली हम देख रहे हैं कि डेटा, इसमें मैं गो थ्रू करूंगी कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स विद इन डेटा साइंस, एंड उनको क्या कहते हैं, उन एस्पेक्ट्स में हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट.
So first off we have data collection. ठीक है, डेटा कलेक्शन हमारे पास एक डेटा साइंस का बहुत क्रूशल स्टेप है. ठीक है, बिकॉज इसमें आप पूरा डेटा गैदर करते हो एंड देन इसमें आप इसके विद इन डेटा कलेक्शन मैंने प्रिपरेशन भी डाला हुआ है. सो आप डेटा को अभी मैंने जिस तरह पिछली उसमें बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, बिकॉज इसकी ही बेसिस पे फिर आपका पूरा आगे मॉडलिंग होती है एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो डेटा स्क्रैपिंग एंड क्रॉलिंग इज बेसिकली कि आप जो मैंने बताया कि ऑनलाइन डेटा किस तरीके से गैदर कर सकते हो. तो बेसिकली वेब से जितना भी डेटा गैदर करना होता है तो वो हम डेटा स्क्रैपिंग के थ्रू गेन करते हैं. एंड पाइथन में हमारे पास एक लाइब्रेरी है कॉल्ड एज ब्यूटीफुल सूप. आई नो फनी सा नाम है थोड़ा. ब्यूटीफुल सूप के थ्रू आप जो होते हो वो वेब डेटा को गेट कर सकते हो. इसके अलावा स्क्रैपी भी एक है, स्क्रैपी के थ्रू भी आप डेटा को फेच कर सकते हो फ्रॉम वेब. बोथ ऑफ दीज आर लाइब्रेरीज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड जस्ट अ साइड नोट, ये एक बहुत डेटा साइंस जो है ना एक बहुत वास्ट दुनिया है. ठीक है, एंड विद इन डेटा साइंस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, सो इट्स नॉट समथिंग दैट मैं इजीली एक 1 आवर के सेशन में मैं उसको कंक्लूड कर सकती हूँ. सो obviously that's why मुझे बताया गया था कि मुझे बेसिक चीज़ें बतानी है. that's why I haven't included technical stuff in this because I wanted to give you all an overall view of what data science is. ठीक है, इसलिए मैंने Python programming language और मोटे मोटे लफ्ज नहीं लिखे ताकि आप लोग freak out ना हो. but all of this includes in somewhat ways it includes different algorithms, different tools and techniques and programming languages. so जो मैं programming language की बात कर रही हूँ that's Python programming language. फिर हम आते हैं डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग के ऊपर. लाइक आई सेड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी ऊपर आपकी आगे क्या कहते हैं रिजल्ट्स जनरेट होते हैं. डेटा प्री प्रोसेसिंग में एंड क्लीनिंग में बेसिकली आप जो आपकी अगर आप डेटा गैदर करते हो ना तो 100% वो फिल्ड नहीं हो सकता. समटाइम्स इट विल हैव मिसिंग वैल्यूज. सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू फिल आउट दोज मिसिंग वैल्यूज. आप डेटा के उसी डेटा के मीडियन से उसको फिल आउट कर सकते हो, मॉड से कर सकते हो, क्या कहते हैं इसके अलावा ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनके थ्रू कर सकते हो. फिर आप डेटा की नॉर्मलाइजेशन करते हो. डेटा नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली कि जब आपके पास डेटा जो होता है ना वो बहुत डिफरेंट एंड वो बहुत बड़ी रेंजेस में होता है. लाइक अगर आपका डेटा जो है वो थाउजेंड्स की रेंजेस में या मिलियंस की रेंजेस में तो उसको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो व्हाट यू डू इज यू डू डेटा स्टैंडर्डाइजेशन और डेटा नॉर्मलाइजेशन भी से कहते हैं, जिसमें जितना भी डेटा होता है जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है उनको 0 to 1 में स्केल आउट कर लेते हैं. सो इस तरीके से उसको प्रोसेस करना हमारे पास ईजी हो जाता है. एंड इसके अलावा हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं. लाइक हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और हमारे पास जितने भी एरर्स होते हैं या जो आउटलायर्स होते हैं हम उन सब से गेट रेड कर जाते हैं ताकि हमारे पास एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए. ठीक है, then we have data visualization. It's another aspect. पूरी data visualization की पूरी अलग दुनिया है. ठीक है, there are people जो स्पेशलाइज सिर्फ विजुअलाइजेशन के अंदर करते हैं बिकॉज इट्स एन आर्ट. ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन जहाँ जहाँ जितना ये टेक्निकल चीज़ है इतनी ही ये depends on your soft skills as well. So data visualization tools में हमारे पास आता है Tableau. I've personally used Tableau. Power BI आता है and Power BI is Tableau and Power BI ये ऐसे tools हैं जो आजकल मार्केट में they are at their boom. ठीक है, हर कंपनी को डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ये BI experts, पावर BI एक्सपर्ट्स एंड टैब्लो एक्सपर्ट्स चाहिए. इट्स वन, मैं ये कह सकती हूँ कि ये सबसे इन डिमांड रिक्वायरमेंट है आजकल मार्केट में. सो अगर आप इसमें एक्सपर्टीज ले लेते हो दैट्स ग्रेट बिकॉज इनकी जॉब्स आगे बाहर बहुत हैं. ठीक है, सो बेसिकली आप इन विजुअलाइजेशन टूल्स में क्या करते हो, यू क्रिएट डैशबोर्ड्स, यू क्रिएट रिपोर्ट्स. व्हेन यू गो इनटू मार्केट, बिजनेस में जाते हो तो जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना वो टेक्निकल लोग नहीं होते. बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो टेक्निकल लोग हों, और जो टेक्निकल लोग नहीं होते उनको नंबर समझ नहीं आती. एक आम लेमैन के लिए नंबर्स नहीं, उनको द नंबर्स डोंट मेक सेंस फॉर देम. व्हाट मेक्स सेंस फॉर देम इज कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं. ठीक है, एंड ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशंस इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करवाने के लिए. इसलिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बिजनेस पीपल यू नीड टू क्रिएट डेटा विजुअलाइजेशंस ताकि जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं
उनको वो इजीली समझ सकें कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो. सो डेटा विजुअलाइजेशन इज अ ब्यूटिफुल वे टू डिस्प्ले योर नंबर्स, योर डेटा. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज अल्टीमेटली द डिसीजंस आर मेड बाय द पीपल हु आर एट मैनेजरियल लेवल, ठीक है, या जो ओनर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं. सो उनको समझाने के लिए ताकि उन्हें इजीली समझ में आ जाए, यू यूज डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, ठीक है. इसके अलावा डेटा स्टोरी टेलिंग में हमारे पास यही आ जाता है कि आप डेटा विजुअलाइजेशन तो बता दो, बट उसके साथ आपके पास ये सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए कि आप उसको कम्युनिकेट सही से करा सको. जब आपने रिप्रेजेंट कर दिया डेटा, तो आपको आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप इजीली बता दो कि आप क्या शो कर रहे हो, ठीक है. देन वी हैव डेटा मॉडलिंग. डेटा मॉडलिंग में आप बेसिकली ये करते हो कि आप अपने लिए, नो नॉट अपने लिए, यू बेसिकली क्रिएट स्टेटिस्टिकल मॉडल्स, यू क्रिएट मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है. स्टेटिस्टिकल मॉडल्स में हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आ जाती है और इस तरीके से. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, बट बेसिकली आप स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए आप मॉडल्स क्रिएट करते हो. सिमिलरली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू आप मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ करते हो. लाइक आई सेड, आप डिसीजन ट्रीज यूज़ कर सकते हो, आप रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा देयर आर टन्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जिससे आप अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो. एंड ट्रेनिंग के बाद यू गेट टू टेस्ट दोज मॉडल्स, एंड देन आप, if they are accurate and precise, then you can even deploy them into your business, ठीक है. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा मेन पॉइंट था ना ऑफ दिस होल सीरीज इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका बड़ा मजे से जो है डेटा साइंस के साथ लिंक्ड अप है, ठीक है. आप जो नेचुरल लैंग्वेज, इसमें आपके पास डीप लर्निंग आती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इसकी सबसे इजी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेसिंग की मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, दैट इज चैट जीपीटी, ठीक है. सो मशीन लर्निंग प्रोसेस, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस इज नथिंग बट इट्स, आप मशीन्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करवाते हो ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है. तो उसमें आप उनको सेंटिमेंट एनालिसिस कराते हो, उनको क्या कहते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन समझाते हो. सो बेसिकली ये चीज़ें सारी टेक्निक्स यूज होती हैं इन दिस डोमेन, ठीक है, विच अल्टीमेटली आपको ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और जो डेटा साइंस की मेन एप्लीकेशंस हैं उनमें हेल्प आउट करती हैं. एंड देन यू कम टूवर्ड्स बिग डेटा एनालिटिक्स. आजकल जो डेटा है हमारे पास, उसको हम बिग डेटा में क्लासीफाई करते हैं. एंड देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट नीड टू बी फुलफिल्ड टू क्वालिफाई डेटा एज बिग डेटा. बट आजकल का हमारे पास जितना भी डेटा है, सो इट्स नॉर्मली कंसिडर्ड एज बिग डेटा, बिकॉज पेटाबाइट्स ऑफ डेटा एंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा, इसको आप एक सिस्टम में नहीं, क्या कहते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. सो इसके लिए हडूप है हमारे पास. हडूप इज बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप क्या कहते हैं, जो डेटा होता है ना, वो स्टोर भी होता है एंड प्रोसेस भी होता है, बट इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. मीन्स के इसमें हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं, नोड्स होते हैं, एंड विद इन ईच नोड डेटा स्टोर हुआ होता है. सो इट्स एन, हडूप इज अनदर वर्ल्ड, ठीक है. इस पूरा एक कोर्स इस पे हडूप पे हो सकता है. एंड आई हैव स्टडीड अ कोर्स बिग डेटा प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने हडूप एंड स्पार्क को पढ़ा था. And then lastly we have NoSQL. NoSQL is basically a database that or you can say database language जो कि unstructured data के लिए आप use करते हैं, ठीक है. Unstructured data में जैसे मैंने बताया था कि ऑडियोज एंड इमेजेस एंड ये सब कुछ आता है. सो बेसिकली आप NoSQL लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जो है वो प्रोसेस कर सकते हो. Now coming towards, बस हम थोड़ा सा सेशन का टाइम भी थोड़ा कम हो रहा है, so I'll speed up so that I have few minutes for questions. But अब मैं बात करूँगी about different career paths that you can take in data science, ठीक है. हमारे पास different roles हैं within data, ठीक है. So you have a data analyst, you have a data scientist, and you have a data engineer. अब इनमें फ़र्क क्या है कि डेटा एनालिस्ट जो होता है वो बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज करे, उसमें से कोई पैटर्न निकाले, उसमें से कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करे और कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे, एक इन्फॉर्म डिसीजन दे जिसको हम अपने बिजनेस में उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें. दैट्स अ डेटा एनालिस्ट,
Data scientist on the other hand is basically the data scientist works with algorithms, ठीक है, वो algorithms के साथ काम करते हैं, वो models के साथ काम करते हैं, उनको train करते हैं ताकि वो real time में predictive analysis perform कर सके, ठीक है. So that is data scientist. And then lastly we have data engineer. Data engineer का basically काम ये होता है कि वो एक ऐसा infrastructure maintain कर सके, ऐसी data pipelines maintain कर सके जिससे हम data को access कर सके, ठीक है. सो हमारे पास जो डेटा इंजीनियर्स का काम होता है कि वो हमारे पास इस तरह की डेटा पाइपलाइंस को मैनेज कर सकें ताकि हम इजीली डेटा, लार्ज वॉल्यूम जैसे कि बिग डेटा हो गया, उस बिग डेटा को हम एक्सेस कर सकें और इजीली उसको हम प्रोसेस कर सकें. सो डेटा इंजीनियर का बेसिकली ये काम होता है. एंड अब इनके लिए टेक्निकल स्किल्स क्या चाहिए होती है हमें, हर रोल के लिए देयर आर different technical skills, ठीक है. So for example for a data analyst I could say कि उनको SQL आनी चाहिए, ठीक है, उनको Excel आना चाहिए. खैर Excel तो एक ऐसी स्किल है जो आजकल मेरे ख्याल से हर इंसान को आनी चाहिए, बिकॉज आजकल कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ पे डेटा प्रोड्यूस ना हो रहा हो, ठीक है. सो Excel and then SQL. इसके अलावा अगर आपको Python आती है that's well and good. Python के अलावा there is another programming language that is called R. So R काफ़ी statistics के लिए काफ़ी use होती है and in statistical modeling के लिए ये वो, but ज़्यादा जो पसंद की जाती है that's Python language. So these are the skills that are required by a data analyst, ठीक है. Data visualization के लिए फिर आपको Tableau का पता होना चाहिए, आपको BI का पता होना चाहिए. देन हम आते हैं डेटा साइंटिस्ट की तरफ. तो डेटा साइंटिस्ट को अगेन यही हमारे पास नो सीक्वल का पता होना चाहिए, उनको बिग डेटा का पता होना चाहिए, अगर वो मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट करें देन उनको मशीन लर्निंग का पता होना चाहिए. इवन आप मशीन लर्निंग की क्या कहते हैं, देयर आर लाइब्रेरीज विद इन पाइथन लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप यूज़ कर सकते हैं. एंड देन अलहदा से देयर इज टेंसरफ्लो एज वेल. If I'm not wrong, कल के सेशन में ग्रेडियो के बारे में बात हुई थी, that was for machine learning as well. So the options आजकल की दुनिया में the options are limitless, ठीक है. हर कोई everyone is coming up with different platforms जहाँ पे आप इन चीज़ों को practice कर सकते हैं. And then lastly we have data engineer. Data engineer basically उसको SQL databases के बारे में पता होना चाहिए, उसको Hadoop के बारे में पता होना चाहिए, because ये ऐसी infrastructure से ऐसे platforms हैं जो data को store भी करते हैं and process भी करते हैं. So अगर हम Hadoop की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास सारा distributed data आ जाएगा, ठीक है, इसमें unstructured भी आ जाता है. अगर मैं SQL की बात करती हूँ तो इसमें सारा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा आता है, मतलब कि ऐसा डेटा जो कि हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा. एंड देन अगर इसके अलावा हमें क्लाउड के बारे में, डेटा इंजीनियर्स को क्लाउड प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए. सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड प्रोग्रामिंग इज बेसिकली के क्लाउड्स की जो है वो हमारे पास अमेजोन का क्लाउड है, हमारे पास गूगल का क्लाउड भी है, तो उनको इनके बारे में भी पता होना चाहिए ताकि वो डेटा, क्योंकि क्लाउड पे भी आप अपना डेटा स्टोर करते होते हैं ना, तो उधर उसको स्टोर करना है, देन उसको मैनेज करना है, इट ऑल कम्स विद इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डेटा इंजीनियर. सो ये बेसिकली थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल्स हैं जो अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर परस्यू करना चाहते हैं अपना करियर, तो ये स्किल्स आपको आनी चाहिए. सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. अभी वी हैव 5-6 minutes. If anyone has any questions, please do ask. जी आशा. मैम मेरा ये क्वेश्चन है, आई माइट बी आउट ऑफ द टॉपिक, बट डाटा को मेंटेन, मतलब डाटा की एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जा सकती है, इसके बारे में थोड़ी सी आप गाइड कर सकती हैं. डेटा को की एक्यूरेसी, सो बेसिकली मैंने यही बताया कि डेटा को एक तो आपने अपने डेटा को ना रिलायबल सोर्सेज से लेना. अगर आप खुद डेटा जनरेट नहीं कर रहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डेटा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन, ठीक है, एंड यू आर गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कि वो डेटा क्या कहते हैं, उसकी क्वालिटी है भी, हाई क्वालिटी का डेटा है भी, रिलायबल सोर्स से उसको ले, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए कोई मॉडल ट्रेन कर रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड यू वांट डेटा फ्रॉम वेबसाइट, तो देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक
केगल हो गया, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की वेबसाइट है, दे आर डिफरेंट लाइक रिलायबल सोर्सेज जहाँ से आप उस डेटा को एक्सेस करें ताकि आपका आगे डेटा क्या कहते हैं आपके जो मॉडल्स हैं वो एक्यूरेट बने. So it's all about where you get your data from and how you process that data. I hope that Okay, miss. question was Thanks. answered. Thank you. Ji Abdul Wahab. Ma'am, I want to ask one question about the important skill. I think that discussion was very general, but you could have probably heard that there is a skill called storytelling, through which we can like communicate our data, very meaningful data, in a way that is very understandable and thing. Na? So my question is that how can we develop that skill, like the art of storytelling? How can we develop that or create that skill? Okay. If you can have some ठीक है. idea. सो द स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है ना ये बेसिकली आपकी एक सॉफ्ट स्किल में काउंट होता है. ठीक है. एंड आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहें. सो अगर आप इफ़ यू नॉट लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सो डू गिव प्रेजेंटेशंस. ठीक है. इस तरीके से आपकी एक प्रैक्टिस होती है एंड देन यू आर एबल टू मेक सेंस ऑफ योर वर्ड्स. आपने अपने आप को इस तरीके से तरीका सिखाना होता है कि जो सामने वाले बंदा बैठा है वो उसको आपकी बात की समझ में आ जाए. ठीक है. सो द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज बेसिकली अगर इवन इफ यू आर अ टेक्निकल पर्सन तो आप अपनी बात को इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि एक नॉन टेक्निकल बंदे को भी समझ में आ जाए. सो आई बिलीव दैट कि आपको ये चीज़ जो है विद प्रैक्टिस ही आती है. सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू वुड अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को मैं किस तरीके से सिंपलर वे में किसी दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ. सही है. जी Thank you इमरान. so much, ma'am. वेलकम. इमरान ने हैंड रेस किया हुआ है. मैम मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है. मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो डेटा साइंटिस्ट है ना तो ये भी डेटा के साथ डील कर रहा होता है और ये जो स्टैटिस्टिशियन है तो वो भी डेटा के जी. साथ डील कर रहा होता है, तो फिर इन दोनों जी. में डिफरेंस क्या हुआ? द मेजर डिफरेंस जो स्टेटिस्टिशियन का और डेटा साइंटिस्ट का होता है कि इट्स बेसिकली जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो लोग वो मॉडल्स क्रिएट कर रहे होते हैं. जैसे मैंने बताया था वो प्रिडिक्टिव मॉडल्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट करते हैं, एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं और वो फिर हमारे पास एक ऑटोमेटेड हमारे लिए एक क्या कहते हैं मशीन लर्निंग का मॉडल बना दिया. अब वो रियल टाइम में आपको खुद ही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहेगा. वेयर स्टैटिस्टिशियन आपको एक बता देता है कि चले ये है जो पर उसका जो सोल्यूशन होता है ना इट्स नॉट ऑटोमेटेड. ठीक है. तो वो कोई क्या कहते हैं मॉडल नहीं आगे से क्रिएट कर रहा होता. आप एक दोनों काम सेम हो रहे थे, एक ऑटोमेटेड होता और द अदर वन इज नॉट. ओके, थैंक यू मैम. कोई किसी और का सवाल कोई? मैम वन मोर क्वेश्चन प्लीज. जी जी. आपको क्या लगता है कि मतलब फ्यूचर के लिए टैब्ल्यू ज़्यादा बेटर है या पावर बीआई? पावर बीआई जो है आजकल ना पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं वो सबसे ज़्यादा पावर बीआई का हो रहा है. बट टैब्लो इज़ इंटरनेशनली ज़्यादा हमारे पास क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल हो रहा है. एक्सेप्ट आई वोंट से एक्सेप्टेबल बट टैब्लो की इंटरनेशनल रिकग्निशन ज़रा ज़्यादा है. ठीक है. एंड देन विद इन टैब्लो देयर आर सम एस्पेक्ट्स जो पावर बीआई से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं. आई एम सॉरी बट ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं भी सही से बता नहीं सकती बट आफ्टर द सेशन फॉलो अप आई कैन सर्च इट अप एंड टेल यू द एग्जैक्ट क्या कहते हैं डिफरेंसेस जिसकी वजह से टैब्लो जो है वो बाहर ज़्यादा क्या कहते हैं उसको किया जा रहा है, प्रेफर किया जा रहा है. बट मेन जो दोनों का पर्पस है इट्स द सेम. ओके मिस, थैंक यू. एक मिनट. ये किसी ने हैंड रेस किया था जो बस आप पूछ ले आंसर. आई कैन सी हु दैट पर्सन इज. अब्दुल वहाब. No, ma'am, I have asked my question. अच्छा ओके ओके सॉरी. आई थिंक अच्छा बस और नहीं आई थिंक. सो एंडिंग में मैं यही कहूँगी कि लाइक वन ऑफ
of you said कि ये काफ़ी journalized discussion थी, and of course it was a journalized discussion जिसमें the main idea was to let you know all कि data science होती क्या है. ये कल को आपके parents even if you want to pursue your degree or if you want to pursue your journey in it, तो आपको जब आपके parents बोले कि ये data science क्या, तो आपके पास at least ये answer होना चाहिए कि आपको इतना पता हो कि data science है क्या. Because when I was I was starting my BS, मुझे नहीं पता था कि डेटा साइंस क्या है. ठीक है, मुझे बस नाम फैंसी लगा. आई वाज लाइक ओके, थोड़ा बहुत सर्च किया, ओके आजकल काफ़ी इन डिमांड है, ये वो है, तो मैंने आई जस्ट वेंट अहेड विद इट. बट द मेन objective of this session was to basically develop a basic understanding of the huge domain that is data science. And वो किस तरीके से हमारे पास, मैंने बहुत real life examples भी include करने की कोशिश की. Hopefully वो आप सबको clear भी हो कि आपकी daily life में आप अपने इर्द गिर्द कितना data science को देख रहे हैं, but you don't really know कि okay this is an application of data science. So this was basically to let क्या कहते हैं, to let you all know कि these are the prospects within the field. ये चीज़ें ज़्यादा in use हैं और इन तरीकों से ये use हो रही हैं. I think किसी ने hand raise किया, मुस्तफ़ा. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. मुझे सर ये वो इसकी सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़े बता दे कि वो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं. अच्छा, डेटा साइंस अगर आपने कोर्सेज करने हैं तो योर फर्स्ट फ्रेंड इज कोर्सेरा. ठीक है, उधर आप फाइनेंशियल एड पे अप्लाई करके यू कैन इजीली डू एज मेनी कोर्सेज एज यू वांट. ठीक है, इसके अलावा यूडेमी भी है. क्या कहते हैं, इवन यूट्यूब पे काफ़ी पेजेस हैं जहाँ पे डेटा साइंस की करेंगे. जस्ट आप यूट्यूब पे जाके एक डेटा साइंस का हिट करते हैं, देयर आर सो मेनी चैनल्स जो कि आप एक सिंपली लर्न है जो आपको बता देगा कि क्या कहते हैं इन जगहों से आप कोर्सेज कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज. और इसके अलावा लाइक विद इन कोर्सेरा गूगल के कोर्सेज हैं, IBM के कोर्सेज हैं, जो कि बेसिकली आपको बेसिक स्किल्स के साथ इक्विप करते हैं फॉर डेटा साइंस. I want to add one thing. जी. जैसे कि एक बंदे ने पूछा कि कोर्सेज कहाँ से कर सकते हैं. देयर इज अ वेरी ट्रेंडिंग कोर्स गोइंग राइट नाउ और वो सिस्को की तरफ से, एंड दैट्स फ्री. यू कैन गो मतलब फ्री में ले सकते हैं. थैंक यू वहाब. मुस्तफ़ा, जैसे वहाब ने बताया कि देयर इज अ सिस्को का भी एक है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वो भी कर सकते हैं. यूडीमी में आई गेस पेड होते हैं, एंड कोर्सेरा में अगर आप फाइनेंशियल एड ले लें तो आपको इजीली वहाँ पे डेटा साइंस के हज़ारों किस्म के क्या कहते हैं वो मिल जाएंगे कोर्सेज जो कि आप इजीली कर सकते हैं. एंड अदर देन दैट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स जो कि दे रही होती हैं कोर्सेज. लाइक आई सेड सिंपली लर्न है, इसके अलावा यूडेमी है, यूडेसिटी भी है, डेटा कैंप्स हैं, तो उस पर आप जाके कर सकते हैं कोर्सेज. If anyone doesn't have any other questions, so Adiba, I think we can conclude the session then. Yes, I think nobody has a question, so we'll wrap up the session. Yeah, so we hope you found this session both informative and engaging. Ghofera's presentation on data science essentials was remarkable, and her ability to break down complex concepts into understandable terms is truly impressive. We would like to express our heartfelt gratitude to Ghofera for sharing her expertise with us in this session. Her passion for data science is contagious, and we are excited to see where her journey takes her in the future. Remember, data is the backbone of modern technology, and the insights it provides are crucial to making informed decisions in our lives. We encourage you to explore the field of data science further and discover the endless possibilities it offers. Thank you for joining us in this episode of Artificial Intelligence Unfolded, and we look forward to having you in our next session.